फरमाए। और अब इस महफिल का ख़ास प्रोग्राम जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, यानी दर्स बुखारी शरीफ, जिनके लिए हमारे मोहतरम मुरब्बी उस्ताद फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ मसूद आलम हाफ़िज़हुल्लाह ताला लंबा सफ़र तय करके तशरीफ़ लाए हैं। ये उनकी बहुत मेहरबानी और शफ़क़त है कि वो जब भी जामिया की तरफ से उन्हें दावत दी जाती है वो वक़्त निकालते हैं, अपनी कीमती घड़ियाँ हमारे सुपुर्द कर देते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनके इल्म में बरकत अता फ़रमाए। तो मैं बिला ताख़ीर उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो दर्स बुखारी के लिए अपनी जगह से ही दर्स बुखारी शुरू फरमाएँ। अल्लाह ताला उनको बरकत दे। अश-शेख हाफ़िज़ मसूद आलम हाफ़िज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला मुअल्लिमिल खैरि व अअज़मिल क़ुदवात नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन इक़्तदा आसारहुमुल बाक़ियात व बाद। फ़यक़ूलु शैख़ुना अल अब्दुल फ़क़ीरु इलल्लाह अब्बास बिन फ़तिह ख़ान अस्सहतानी अख़बरना शेख अबू मुहम्मद अब्दुस्सत्तार अल-हम्माद बिन महताबिद्दीन क़ाल अख़बरना शेख अबू यहया सुल्तान महमूद बिन अल-हसन अल-कसरानी क़ाल अख़बरना शेख अबू सईद हुसैन बिन अब्दुर्रहीम अल-बतालवी क़ाल अख़बरना शेख सय्यद नज़ीर हुसैन अल-मुहद्दिस अद-दहलवी क़ाल अख़बरना मुहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी क़ाल अख़बरना शेख अब्दुल अज़ीज़ अद-दहलवी क़ाल अख़बरना अबी शेख अहमद बिन अब्दुर्रहीम अल-मअरूफ़ बिशाह वलिय्यिल्लाह अद-दहलवी क़ाल अख़बरना मुहम्मद बिन इब्राहीम अल-कुर्दी क़ाल अख़बरना शेख अहमद अल-क़श्शाशी क़ाल अख़बरना शेख अहमद बिन अब्दुल क़ुद्दूस अश-शन्नावी क़ाल अख़बरना शेख मुहम्मद बिन अहमद अर-रमली क़ाल अख़बरना शेख अहमद ज़करिया बिन मुहम्मद अल-अंसारी क़ाल अख़बरना शेख अहमद बिन हजर अल-अस्क़लानी क़ाल अख़बरना शेख इब्राहीम बिन अहमद अत-तन्नूखी
قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا الشيخ السراج حسين بن مبارك الزبيدي عن عبد الأول السجزي الهروي عن عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بززبة ابن بردزبة بن بززبة الجعفي مولاهم البخاري قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسطاس مصدر المقسط وهو القسط، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أصحاب الفضيلة، العلماء والأساتذة والمشايخ الكرام والأئمة والخطباء والمدرسين، رفع الله قدركم وبارك في جهودكم. والإخوة الأعزة الذين أنهوا الدراسة النظامية في رحاب هذه الجامعة المباركة الميمونة، جامعة أبي بكر الإسلامية، والإخوة الحضور، إخوة الإيمان، نحن نحمد الله ونشكره على هذه النعمة بأنه جمعنا في هذه المؤسسة المباركة الميمونة التي أنشئت لتعليم الكتاب والحكمة ولتفقيه أبناء المسلمين في الدين الحنيف، وإعدادهم لكي يقوموا بتلك المهمة الجليلة التي بعث الله بها الرسل والأنبياء، وختم الرسالة والنبوة على سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، فلا نبي بعده ولا رسول، ولكن عمل النبوة هو جار إلى يوم القيامة. فاختار الله سبحانه وتعالى
لهذا الإرث وهذا الموروث الذي أورثه الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء العلماء الذين فازوا بهذا الإرث أكرم بهم وارثا وموروثا. فهذه الجامعة أسست لإعداد العلماء وتثقيفهم وتربيتهم وإعدادهم لأداء هذه المهمة التي بعث الله لأدائها الرسل والأنبياء إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى الله تبارك وتعالى من عباده الذين اختارهم سبحانه وتعالى على علم. الله أكبر الله أكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء الذين أورثوا الكتاب اصطفاهم الله تبارك وتعالى لهذا الإرث. وقال عز من قائل: إن الله بعباده لخبير بصير. فهؤلاء المصطفون لهذا الإرث اختارهم الله سبحانه وتعالى لهذا الشرف. وكما قال جل وعلا لرسوله ونبيه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا الفضل العظيم اختار الله سبحانه وتعالى له نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإرث الذي اختار الله سبحانه وتعالى لكي يرثه من عباده المصطفون، فهؤلاء عليهم تفضل الله تبارك وتعالى بهذا الفضل العظيم، واختارهم الله تبارك وتعالى لهذا الشرف وهذه المرتبة العظيمة، أنهم يرثون الرسول صلى الله عليه وسلم في علمه، في هداه، وفي تعليمه، وفي تزكيته، وفي دعوته، وفي إبلاغ رسالته صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوة بارك الله فيكم، أنا أهنئكم على هذه المزية وعلى هذه المنة العظيمة التي شرفكم الله بها. فاشكروا الله على هذه المنة وعلى هذا الفضل العظيم الذي خصكم الله به سبحانه وتعالى. وأخلصوا نواياكم وأعدوا أنفسكم لتحمل هذه المسؤولية، وقوموا بهذه الفضيلة بهذه الفريضة التي هي على عاتق هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم موفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. وهذه الأمة هي خير أمة لأنها تقوم بعمل الرسل، إنها تقوم بالدعوة إلى الله، إنها ترث الأنبياء وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أعلن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مصداق هؤلاء الذين يدعون إلى الله على بصيرة متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم ويقومون بهذه المهمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وهذه الجامعة منسوبة إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، الخليفة بلا فصل، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو تلك الشخصية الفذة العظيمة الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاوم تلك الفتنة العظيمة التي ثارت وقامت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنة الردة. وأيها الإخوة الكرام، نحن في عصر سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من هذه الفتن، من مضلات الأهواء والفتن، وأن يثبتنا على الدين.
हाज़ल असर व हाज़ल ज़मन कसरत फ़ीहिल फ़ितन व कमा क़ाला अल उस्ताज़ अल्लामा अबुल हसन अली अन-नदवी रहमहुल्लाहु फ़ी मुहादरतिन लहू रिद्दतुन वला अबा बकरिन लहा अन्नास यर्तद्दून अन दीनिहिम व यनहरिफून अन तिलकल जाद्दा अल मुस्तकीमा अल्लती तरक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहु वक़ाल तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक व कसुरा अल इन्हिराफ वल इर्तिदाद अन हाज़िहिल जाद्दतिल मुस्तकीमा वला अबा बकरिन लहा अबू बकरिन कामा खलीफतन लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सद्दी हाज़ा तूफ़ान व हाज़िहिल फ़ितनतिल अल्लती कादत अन तजहफ़ अन्नासा फी ज़ालिक अस्सैलिल जारिफ व क़ाम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मअ अवानिही व वज़राइही व अस्हाबिही तुजाह हाज़िहिल फ़ितना व अख़मदहा व अक़ाम सरहल इस्लामी अला तिलकल उसस अल्लती अक़ाम अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान अव्वल अहलिल हदीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लम्मा अशारा अलैहि अन्नास या अबा बकर कैफ़ा तुनफ़िज़ु व तुरसिलु जैश उसामा वन्नास क़द इर्तद्दू अन दीनिहिम व क़ामतिल फ़ितनतु फ़ी अल अरब कुल्लिही व अंत कैफ़ तुरसिलु जैश उसामा इला तिलकल हुदूद व इला तिलकल सुगूर वल मदीना लैसा फ़ीहा अल क़ुव्वा अल्लती तुदाफ़िउ अन्हा व तहमीहा फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अना अल्लाहु अकबर कैफ़ अतजर्रउ अन अहुल्ला तिलकर राया अल्लती रबतहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन उक़िफ़ा ज़ालिकल जैश अल्लज़ी अरसलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ल जैशु यग़ज़ु तिलका सुगूर व यसिलु इला हुनाक व हाज़ल अलमु यब्का मंशूरन व यब्का हकज़ा मफ़्तूहन वल्लाहु तबारक व तआला यहफ़ज़ुना व यंसुरुना व अना ला अस्ततीउ अन अतअख़्ख़रा अन मा फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल अना उदाफ़िउ अन्हु व अना उहाफ़िज़ु अलैहि व अना उनफ़्फ़िज़ु मा अमर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़िहिल जामिआ मंसूबतुन इला सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व कज़ालिका जामिअतु आयशा सिद्दीक़ा मंसूबतुन इला सय्यिदा अत्ताहिरतिल मुतहहरा उम्मुल मोमिनीन अल मुबर्रअति मिन फ़ौक़ि समावात आयशा उम्मुल मोमिनीन अल्लती काना अस्सहाबतु यलजऊन इलैहा फिल मुअज़िलात वल मुश्किलात व कानत तुरशिदुहुम व तुवज्जिहुहुम कमा औरद ज़ालिका अल अल्लामतु ज़रकशी फ़ी किताबिही अल इजाबा लिइरादी मस्तदरकतु आयशा लिइरादी मस्तदरकतु आयशा वल सहाबा फ़हातानिल जामिअतान जामिअतु अबी बकर व जामिअतु आयशा सिद्दीक़ा फ़ी हाज़ल असर व फ़ी हाज़ल बलद व फ़ी हाज़िहिल मदीना मिन निअमतिल्लाहिल उज़्मा फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक व वराअहा तिलकल जुहूद व तिलकल ज़हाया तिलकल तज़हियात व तिलकल जुहूदुल मुबारका अल्लती बज़लहा अख़ूना व शैख़ुना व हबीबुना अस्सय्यिद मुहम्मद ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह व आवानुहु व इख़वानुहु व रुफ़क़ाउहु जज़ाहुमुल्लाहु कुल्ल खैरिन लिल इस्लामी वल मुस्लिमीन व अअल्लाहु दरजातिहिम फ़ी इल्लिय्यीन व अस्कनहुम फ़रादीसल जिनान व अलहक़हुम बिस्सालिहीन व सारा बिना अला तरीक़िहिम व अला दरबिहिम अल्लज़ी सारू अलैहि व जमाअना माहुम फ़ी जन्नातिल फ़िरदौस मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन अल्लज़ीना सारू अला ज़ालिका तरीक़ अय्युहल इख़्वा नहनु नशकुरुल्लाह अला हाज़ा अल्लज़ी हय्या लना हाज़ल इंतिसाब व हाज़ल इंसिलाक फ़ी हाज़ा सिल्किल मयमून व फ़ी हाज़ा सिल्किल ज़हबी अल अख़ ज़करा इस्नादहु इलल इमामिल हुमाम व अना इंदी अयज़न अना अरवी अस्सहीह अल बुखारी अन शैख़ी व उस्तादी अबिल हसन अब्दुल्लाह। मुझे कहा गया है कि ज़रा आप अपना मीडिया बदल दें, अरबी को छोड़ दें और उर्दू की तरफ आ जाएं।
बात यह है कि हमने छोड़ा हुआ है। बात तो ये है कि जब यहाँ थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ही ओढ़ना बिछौना था, लेकिन अब इनक़िता हो गया है तो थोड़ा सा तवक्कुफ और थोड़ा सा जो है ना तलक्को हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे चलता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है और स्पीड पकड़ लेता है। तो जब स्पीड पकड़ने लगा हूं तो उन्होंने मेरे ब्रेक लगा दिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल दिया लो समा, इसलिए मैं अरबी को छोड़ता हूँ, अब उर्दू की तरफ आता हूँ। तो अजीज़ा ने गिरामी, मैंने इन अजीज़ तलबा के सामने जिक्र किया है कि मेरी भी सनद अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी तक पहुँचती है। मेरे उस्ताद गिरामी जामिया सल्फिया में मैंने उनसे सही बुखारी पढ़ी। अल्लामा हाफिजुल हदीस व हाफिजुल कुरान अबुल हसन अब्दुल्लाह बुड्डी मालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हाफिज गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। उन्होंने हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी और उन्होंने शेखुल कुल हजरत सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी और हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह की। बेटा जरा पानी डालना, ये पानी हाँ हाँ ये ले लेता हूँ। तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अब्दुल हक बनारसी रहमतुल्लाह अलैह से भी सनद ली थी और अब्दुल हक बनारसी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा शौकानी के बेटे से सनद ली थी। तो ये सनद जो है अल्लामा शौकानी तक भी पहुंचती है और सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह तक भी पहुंचती है। और सैयद नज़ीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की भी दो सनदें हैं, एक सनद उनकी शाह वलीउल्लाह के वसातत से है और एक वास्ता उनका दूसरा है। और मेरे पास जो दूसरी सनद है वो अल्लामा अब्दुल गफ्फार हसन रहमतुल्लाह अलैह की वसातत से है। तो इस वास्ते से जो मैंने पहले जिक्र किया अल्लामा अबुल हसन अब्दुल्ला बुड्डी मालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद अल्लामा हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद अल्लामा हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे दरमियान और सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान तीन वास्ते हुए, अब्दुल्ला बुड्डी मालवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन मेरे पास एक दूसरी सनद भी है और वो इजाज़ा है अल्लामा अब्दुल गफ्फार हसन रहमतुल्लाह अलैह की वसातत से। उनके उस्ताद हैं अल्लामा अहमदुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और वो शागिर्द हैं सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इस सनद में मेरे दरमियान और सैयद नज़ीर हुसैन के दरमियान दो वास्ते, उनके दरमियान दो वास्ते। और ये जो हैं अल्लामा अहमदुल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये हुसैन इब्न मोहसिन अंसारी के भी शागिर्द हैं, उनसे भी ये रिवायत करते हैं और वो अल्लामा शौकानी के बेटे से रिवायत करते हैं। और अल्लामा शौकानी की सनद भी फिर मिल जाती है इब्राहिम इब्न हसन अल कुर्दी के साथ जाकर और ये फिर इमाम बुखारी तक पहुंचती है। तो ये जो निस्बत है, ये जो इंसिलाक है, इस लड़ी के अंदर इंसान का परोया जाना है, खुदा की कसम ये इतना बड़ा शरफ है, ये इतना बड़ा शरफ है और ये इतना बड़ा एजाज है कि इंसान जितना भी इसके ऊपर फख्र करे उसका हक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको किस लड़ी में परो दिया, किस सिलसिले के अंदर शामिल कर दिया, जो सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जिब्रील अमीन तक और जिब्रील अमीन की वसातत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचता है। ये निस्बत, ये तसलसल, ये इंसिलाक, ये इर्तिबात, ये ताल्लुक बहुत बड़ा शरफ है और बहुत बड़ी अजमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसका तकद्दुस और इसकी अजमत और इसकी नज़ाकत को मलहूस रखने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी का अक्स उनकी जिंदगी में नजर आता था। अगर एक अंसारी सहाबी को तीर लगता है नमाज के अंदर और वो नमाज नहीं छोड़ता, इसलिए कि नमाज के अंदर जो तिलावत कर रहे थे उसकी लज्जत इतनी ज्यादा थी कि उन्हें तीर की तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नवाफिल पढ़ रहे हैं, एक दोस्त की जियाफत में गए हैं और उसके बाग में और भिड़ उनकी कमीज के अंदर दाखिल हो गया और उसने 16-17 जगह के ऊपर डंग मारा और जब नमाज से फारिग हुए तो कहने लगे यार देखो मेरी कमीज के पीछे है क्या। उसने देखा तो एक भिड़ है जिसने कितनी जगह पर डंग मारा हुआ है। तो कहने लगे जी आपको जब इसने पहली डंक मारी थी तो आप उसी वक्त नमाज छोड़ देते। कहने लगे मैं ऐसी सूरत पढ़ रहा था, मेरा दिल किया कि मैं इसको पूरा कर लूँ, नमाज मुकम्मल करके फिर ही। ये चीजें हैं, ये हमारा इम्तियाज है, ये हमारा इम्तियाज है, ये हमारी इनफरादियत है, ये हमारा एजाज है। हम और चीजों में पड़े हुए हैं कि ये कर लें, वो समेट लें, उससे जुड़ जाएं, उसके साए आत्मत में चले जाएं, उसकी बगल में जाके बैठ जाएं, उसको अपने साथ मिला लें और अल्लाह के बंदो इनको छोड़ो, अल्लाह की तरफ आओ। वातसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम व मन यातसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह से जुड़ो, उससे मांगो, सारे खजाने तो उसके पास है, हम क्यों किसी के पास जाए। तो इसलिए
मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तालीम दी है इस किताब के अंदर, इस तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और आखिरी बाब जो है वज़न आमाल का है। आमाल के अंदर जो वज़न होता है ये तौहीद के साथ होता है और इत्तिबा सुन्नत के साथ होता है, इखलास और लिल्लाहियत के साथ होता है। और अकीदे और इत्तिबा सुन्नत का भी बड़ा वज़न है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ हुस्न अखलाक का भी बड़ा वज़न है। आज हुस्न अखलाक में बड़ी कमी आ गई, हमारा अखलाक बहुत बिल्कुल दिवालिया हो गया। आज अखलाक है तो मफाद के लिए, जहाँ से किसी से कोई फायदा हो वहाँ तो कहते हैं कि अखलाक, लेकिन जब किसी से कोई फायदा ना हो। मुझे एक बात याद आ गई, एक तबका है जो इकराम मुस्लिम का बड़ा एहतमाम करता है, और इकराम मुस्लिम उसी वक्त होता है जब तक ये तवक्को हो गई हमारे साथ आएगा, और जब ये तवक्को खत्म हो जाए तो फिर ये इकराम जो है तजलील और तौहीन के अंदर बल्कि अदावत और बुग़्ज़ के अंदर बदल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कलमा पढ़ता है उसका एहतराम करना चाहिए, जिससे को मफादों को दीनी या दुनियावी सिर्फ उसी तक इकराम हो। ये खुल्के हसन नहीं है। खुल्के हसन ये है कि अहसिन इला मन असा इलैका, और उलमा को तो इसका बहुत एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इल्म के वारिस हैं उनके लिए ये भी जरूरी है कि वो हदिये नबवी के भी वारिस हों। अल हदीयुस सालिह व समतुस सालिह जुज़उम मिन 24 जुज़अम मिन नबुव्वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपका बर्ताव, दुश्मनों से बर्ताव, उन लोगों से जिन्होंने अजियत दी, जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई, उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव क्या था। ये भी बड़ी भारी चीज़ है जो मीज़ान आमाल के अंदर रखी जाएगी। और फिर किस्त का जिक्र फरमाया वनज़ाउल मवाज़ीन अल किस्त के हवाले से। और दीन जो है ये निज़ाम अदल है, इसके साथ ही दुनिया में अदल कायम हो सकता है। अब दुनिया जो है सारी जुल्म से भरी हुई है, हक तलफियाँ हो रही हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अंधेर नगरी बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में यही कुछ हो रहा है। और अदल और इंसाफ अगर आ सकता है तो वो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत और अल्लाह के उतारे हुए कानून, बेलाग कानून, जिसके अंदर ये तालीम है कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तातु यदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी चोरी कर ले तो उसके ऊपर भी हद कायम की जाएगी और उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये है अदल। ये नहीं कि फलां को इस्तिस्ना दे दो और फलां को इस्तिस्ना दे दो और फलां को निकाल के ले जाओ और फलां को निकाल के ले जाओ, कोई बात नहीं है। अल्लाह के कानून के मुकाबले में सारे बराबर हैं। तो इसी निज़ाम के साथ ही दुनिया के अंदर अदल कायम हो सकता है। हमारी दुआ है कि इस मुल्क अजीज के लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, लोग हिजरत करके आए थे कि हम मदीने की तरफ हिजरत करके जा रहे हैं, और आज भी दावा किया जा रहा है कि हम मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं। अल्लाह करे ये जज्बे भी सच्चे हों और ये अज़ाइम भी पक्के हों और अल्लाह ताला रास्ते भी आसान कर दे। लेकिन सिद्क़ व वफ़ा के साथ ये रास्ते आसान होते हैं। और अगर सिर्फ सियासत के लिए ये बोले जाएं तो युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये धोखाबाजी वहाँ नहीं चलती, ये काम नहीं आती, बल्कि इंसान को और ज़्यादा नीचे लेके जाती है। फिद्दर के नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें महफूज रखे। तो मैं अर्ज करता हूँ दीन का जो निज़ाम अदल है, इसको कायम करने से ही दुनिया के अंदर निज़ाम अदल का निज़ाम और इंसाफ की बालादस्ती कायम हो सकती है और इंसाफ की अमलदारी कायम हो सकती है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अदल करने वाला है, अल्लाह ने अदल किया है और अब भी कर रहा है, और आइंदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम इसी अदल के ऊपर कायम है। और आज अगर हम ये देखते हैं कि हमारे लिए वादे पूरे नहीं हो रहे, तो अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हमारे अंदर कमी और कोताही है, जिसकी वजह से आज हम महरूम हैं कि वो वादे पूरे नहीं हो रहे। हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को वैसा बनाएं जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं। और उसका क्या तरीका है? रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, अपने आप को उस दौर में ले जाएं, हिजरत करें उस दौर की तरफ, अपने आप को उस दौर में ले जाएं। वो बात नहीं किसी के ज़हन में आया जमातुल हिजरत व तकफीर, हम वो बात नहीं कहते, वो गुमराह थे। हम कहते हैं इन मुसलमानों में रहकर इनको भी मुसलमान बनाओ और इनके लिए इस्लाम का बेहतरीन नमूना पेश करो। ये हमारे भाई हैं, ये बेखबर है, ये नादान है, ये हमारे भाई हैं। हमने इनको बताना है, हमने फतवे नहीं लगाने, हमने जहन्नम रसीद नहीं करना, हमने तखरीबकारी नहीं करनी, हम इनकी हिफाजत करने वाले और इनके लिए रो रो के दुआएं करने वाले हैं। उम्मत के गुनाहगार बंदों की खातिर मुसल्ले को रो रो के तर करने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके जानशीन हैं, हम उनके मिशन के अमीन हैं, हम उनके इल्म के वारिस हैं, अब हम उनके तरीके के पैरोकार हैं। हम तो इनके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत भी फरमाए, अल्लाह इनको हिदायत भी दे और हम सबको मिलकर अल्लाह इस रास्ते पर चला दे जो जन्नत का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें जन्नत में इकट्ठा फरमा दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो बात मैं समेटता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और आखिर में जो बाब जिक्र किया वो वज़न अमाल का था और किस्त के हवाले से भी कुछ बातें की, मैंने इशारों में बात कर दी और फिर अपनी सनद बयान करते हैं। और दीन के अंदर सनद ज़रूरी है, हवाला होना चाहिए,
उसका माखज और मस्दर, उसका मंबा मालूम होना चाहिए, कहाँ से आई, कौन बताने वाले, किस किताब में है, इसकी क्या हैसियत है। इसके बगैर दीन में कोई बात कबूल नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह अकबर, मेरी जो सनद मुत्तसिल है इमाम बुखारी तक, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सनद फिर आगे, अल्लाह अकबर। अब इस सनद मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हुमाम अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस सय्यद अल फुक़हा सुल्तान अल मुहद्दिसीन अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह वक़ूल क़ाल अल बुखारी हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल इब्न ग़ज़वान अन उमारत इब्न अल क़ाक़ा अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सब कहो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। सनद बयान फरमाई और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल बयान फरमाया। वक्त बहुत हो रहा है, बस बात खत्म करता हूँ मैं। अल्लाहु अकबर। ये सनद कूफी है, ये सनद कूफी है, अबू हुरैरा मदनी है और ये सनद गरीब है। ये अबू हुरैरा मुतफर्रिद है, अबू ज़ुरा मुतफर्रिद हैं, उमारत इब्नुल क़ाक़ा मुतफर्रिद हैं और मोहम्मद इब्न फुज़ैल इब्न ग़ज़वान मुतफर्रिद हैं। और फिर मोहम्मद इब्न फुज़ैल से आगे 20 शागिर्द हैं जो इसकी रिवायत करने वाले। ज़ुहैर इब्न हर्ब हैं, कुतैबा इब्न सईद हैं और दूसरे हजरात हैं, यहाँ अहमद इब्न इश्काब हैं, बहुत सारे लोग रिवायत करने वाले हैं। बात शुरू हुई है गुर्बत से, तफर्रुद से, और फिर फैल गई। और फिर वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग थोड़े हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन ये कम और थोड़े अल्लाह इनको बरकत देगा, फिर फैलेगा। इस्लाम का मुस्तकबल रोशन है और वो वक्त आने वाला है, ये दुनिया देखेगी कि कोई घर दुनिया का ऐसा नहीं रहेगा इसके अंदर इस्लाम की रोशनी नहीं जाएगी, इस्लाम का कलमा नहीं जाएगा। कोई इज्जत से कबूल कर ले, अल्लाह इज्जत के साथ उसको इस्लाम दे देगा, लेकिन अगर कोई इज्जत से कबूल नहीं करेगा तो उसे जलील होकर इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हर घर के अंदर, वो लकड़ी का घर हो, वो पत्थर का घर हो, वो झोंपड़ी हो, वो अल्लाह अकबर किसी ने कोई ऐसा ही झोंपड़ा बनाया हुआ हो, बोरिया तान के बनाया हुआ हो, उसमें भी अल्लाह का दीन पहुंचेगा। इस्लाम का रोशन मुस्तकबल है। लोग कहते हैं कि अमेरिका, लोग कहते हैं यूरोप, लोग कहते हैं रशिया, ये जो कुछ मर्जी कर ले, इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदू कैदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो अल्लाह जो को मंसूबा है वो पूरा होकर रहेगा, हमें अपने आप को उसमें लगाना है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कब होगा और वो हो क्यों नहीं रहा। हमें तो इमाम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मंजिल तक पहुंचना मकसद नहीं है, रास्ते पे चलना मकसद है। मकसद क्या है? उस रास्ते पे कदम पड़ जाए जो जन्नत को जाता है। जन्नत में अल्लाह ने लेके जाना है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दीन के रास्ते पे लगाया हुआ है। और यहाँ मैं उन अहले खैर से, उन असहाबे सरवत से, उन अहले दर्द से जो आज के हालात में भी अपने माल में से हिस्सा निकालते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मजीद तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं कहूँगा कि बड़ा दिल करके निकाला करें। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरबों दिए हैं, जिनको अल्लाह ने अरबों दिए हैं वो लाखों निकालते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मुआमला करके देखो, यकीन जानिए जिनको अरबों दिए हैं वो लाखों निकालते हैं, अल्लाह अरबों में बरकत दे देता है। लेकिन अगर करोड़ों निकालो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खरबों दे देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वो दे देगा जो तुम तसव्वुर भी नहीं करते। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। ये मिलियन, ये बिलियन, ये ट्रिलियन, ये जो चेन चलती है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह अकबर, इसकी कोई हद और हिसाब नहीं। और दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वला दारुल आखिरति खैर। बिल्डिंगों पर खर्च करना अच्छी बात है, ये भी जरूरत है, लेकिन इन तलबा पर खर्च कीजिए, इनके असातिज़ा पर खर्च कीजिए, अहले खैर पर खर्च कीजिए, उलमा पर खर्च कीजिए। बंदों के लिए मट्टी पे खर्च करना आसान है, बंदे पे खर्च करना मुश्किल है। मट्टी पे खर्च कर देते हैं, टाइलों पे खर्च कर देते हैं, फर्नीचर पे खर्च कर देते हैं। और अगर कहें किसी तालिब इल्म पे खर्च करना है तो कहते हैं इन्हें की करना है, इन्हें टेढ़ नहीं लगा, इसकी जरूरत नहीं, इस बेचारे ने जिंदगी नहीं गुजारना। अल्लाह के बंदो, इतने संग दिल ना बनो, रहम दिल बनो। और खास तौर पर ये जो अल्लाह के मेहमान हैं, ये जो अल्लाह के दीन के पासबान हैं, ये जो अल्लाह के दीन के चौकीदार हैं, इनके ऊपर मेहरबान बनो,
इनकी कदर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी कदर करेगा और अल्लाह ताला तुम्हें इनके साथ मिला देगा। सुना आपने कहाँ कहाँ लोग दीन का काम कर रहे हैं, उनमें जहाँ ये असातिज़ा और यहाँ इनके खिदमतकार जो हैं इसमें शरीक हैं, आप लोग भी उसमें शरीक हैं। इसलिए दरिया दिली के साथ खर्च किया और ये आपके रास्ते अल्लाह के दिए हुए रास्ते में कबूल कर ले। मन्नत बने कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी, और ये एहसान न रखो कि हम मदरसों को देते हैं, तालिब इल्मों पर खर्च करते हैं। अल्लाह का एहसान मानो कि उसने तुम्हें तौफीक दी है कि तुम्हारा मन्नत बने के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मन्नत अजू शनास के खिदमत बदाश्त, उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हें अपना नौकर बना, तुम्हारा माल उसने कबूल कर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बेटा मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि तासीर इल्म का सफर जारी रखो, इल्म में पुख्तगी पैदा करो, रसूख पैदा करो, तमक्कुन पैदा करो, दीन के अंदर तफक्को पैदा करो, इखलास पैदा करो, ताल्लुक बिल्लाह को उस्तवार करो। और ये जो इस हदीस के अंदर बयान किया गया है, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से दुआ, अल्लाह की तरफ इनाबत, अल्लाह के साथ इख्बात का ताल्लुक, इसके अंदर मजबूती लेके आओ। इस सिलसिले के ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, तज़किया और एहसान भी और तौहीद खालिस भी और इत्तिबा सुन्नत भी। ये सिलसिला शहीदैन जो है इसके ये दोनों चीज़ें हैं। इल्म के अंदर भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके पोते हजरत इस्माइल देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और उसी सिलसिले से फैज़ याब होने वाले सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और फिर उनके शागिर्दों ने सैयद अब्दुल्लाह गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने और हाफिज़ मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों चीज़ों को जारी रखा है। ये दोनों चीज़ें हमारा इम्तियाज़ है। सिर्फ इल्म नहीं, इल्म के साथ अमल भी, और सिर्फ ज़ाहिरी इल्म अमल नहीं, इसके साथ आमाल क़ल्बिया भी, इल्म भी, तालीम भी और तज़किया और एहसान भी। इल्म और तालीम भी, तज़किया और एहसान भी, इसके साथ अपने आप को जोड़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस रास्ते में आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी रहनुमाई फरमाए, आपकी दस्तगिरी फरमाए, आपसे दीन का काम ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन के रास्ते में हम सबको कबूल फरमा ले। हमारे असातिज़ा के दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे वो रफ़क़ा जो कभी इस मजलिस में हुआ करते थे, मुझे याद है वो दिन जब पहले इज्तिमा होते थे यहाँ, मैं भी उनमें शरीक होता था, ज़फ़रुल्लाह साहब भी होते थे और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब भी और भी दूसरे बाब गाजी साहब भी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा होते थे। लेकिन वो अल्लाह के पास चले गए, हमने भी जाना है। और भाइयों और अजीज़ों, सच्ची बात यह है कि जिस तेज़ी के साथ हमारी लाइन के लोग जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान की सलामती और आफियत के साथ दुनिया से ले जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जानशीन पैदा कर दे जो इस शमा को बुझने न दे और इस झंडे को नीचे ना होने दें और इस नूर को सिमटने न दें, बल्कि इसको और ज़्यादा फैलाने वाले बने। अल्लाह ताला हमारे जानशीन पैदा कर दे, इन इदारों को कायम रखे, इन सिलसिलों को तवाना रखे और इस फैज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी व सारी रखे। जैसे उस बेटे ने माशाअल्लाह आज नज़म पढ़ी, दिल खुश हो गया। अल्लाह बरकत करे और अल्लाह कबूल फरमाए। मैं दुआ गो हूँ अपने अजीज़ मुकर्रम ज़ियाउर रहमान साहब के लिए और अपने शेख मोहतरम मौलाना मोहम्मद फजलुद्दीन के लिए और जो रुफ़क़ा हैं इस इदारे के, हमारे मोहतरम अनस साहब और सारे जो रुफ़क़ा और अहले खैर हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके जज्बों में बरकत करे, अल्लाह इनकी सलाहियतों में बरकत करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मालो जान और इनकी सेहत और इनकी औलादों में और इनके कामों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इल्मी बातें, फ़न्नी बातें और जो निकात और लताइफ होते हैं उनका महल जो है वो क्लासरूम होता है, आप जानते हैं। इसलिए बज़म में अहले नज़र भी हैं, तमाशाई भी हैं। मैंने तमाशाई को लिहाज रखा है और आपको मैंने कहा है कि आपने तो शाख से पढ़ लिया है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं नताइज के लिए मुदीरुल इम्तिहानात मोहतरम जनाब हाफिज़ इफ्तिखार अहमद शाहिद उनको दावत दूँगा, वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर हाफिज़ इफ्तिखार अहमद शाहिद आके तलबा के नताइज का ऐलान फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहीमिर रहमान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद अल मबऊस इलल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल आवान व बअद। अय्युहल ज़ुयूफ़ुल फ़ुज़ला वल असातिज़तिल अजिल्ला
والطلبة الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم من الشرفاء والشركاء، بأن اليوم يوم أخذ وعطاء ويوم فرح وسرور للمجتهدين النبلاء، ويوم تمييز بين الناجحين النبلاء، يوم حصد الزرع وقطف الثمار لجهود أساتذتنا الأخيار في تربيتهم وتعليمهم لتلاميذنا الأبرار. فنسأل الله الغفور الغفار أن يرزق هذه الجامعة بالتطور والازدهار، وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم القرار، وأنزل على مؤسسيها شعائب بالرحمة والأمطار، وجعلها في ميزان حسناته ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. أيها المستمعون ذو الفضل والأنذار، فلا أحول بينكم وبين نتائج آخر الاختبار في هذا الوقت السار، فأرجو الجميع الاستماع الحار. فالمشاركون في الاختبار النهائي لهذا العام 380 طالباً، فمن الكلية الحديث الشريف عددهم 50، والمتخرجون منها 14 طالباً، والفائزون على درجة الامتياز فأولهم عبيد الرحمن، والثاني محمد عديل، والثالث شعيب محمد. ومن السنة الثانية والثالثة أولهم محمد إسحاق، والثاني محمد بن عبد الرحمن، والثالث عمير قدوس. ومن السنة الأولى أولهم عبد العزيز، والثاني إنشاء الرحمن، والثالث محمد صفي الله. والطالب المتفوق من الكلية عبد العزيز يوسف. أما المشاركون من المعهد العلمي الثانوي عددهم 159 طالباً، والذين أكملوا مرحلة الثانوية 35 طالباً، والفائزون على درجة الامتياز أولهم عبد العزيز عبد العليم، والثاني حذيفة عبد الرزاق، والثالث أبو بكر افتخار. ومن الثانوية الصف الثالث أولهم عبد الرحمن شريف، والثاني طالبان اثنان وهما سعود فيصل ومحمد صديق، والثالث عبد الباسط. ومن الصف الثاني أولهم حماد قل، والثاني حمزة نور الإسلام، والثالث سليمان حبيب. ومن الصف الأول ألف أولهم حماد علي، والثاني علي صديق، والثالث فلك طاهر. ومن الصف الأول باء أولهم أويس أحمد، والثاني أحسن يوسف، والثالث أسد الله. والطالب المتفوق من الثانوية عبد الحليم. والمشاركون في مركز اللغة العربية عددهم 171 طالباً، والذين سيحصلون على شهادة اللغة العربية 94 طالباً، والفائزون على درجة الامتياز فأولهم من المركز الثاني ألف إسماعيل سعيد، والثاني معاذ علي، والثالث عبد العزيز. ومن المركز الثاني باء أولهم مصطفى نثار، والثاني كليم الله داود، والثالث ماجد داود. ومن المركز الثاني جيم أولهم علي حيدر، والثاني محمد شرجيل، والثالث حمزة كاشف. ومن المركز أول ألف الأول سيف الله، والثاني عبد الحنان، والثالث محمد زيد سلطان. ومن المركز أول باء الأول محمد سفيان، والثاني عبد الله شاهد، والثالث عبد الله جهانگير. أما طالب المتفوق من المركز اللغة العربية علي حيدر النسبة المئوية 92، والطالب المثالي عبيد الرحمن من كلية الحديث وهو من المتخرجين.
ومن مدرسة رول مادر فرع جامع أبي بكر الإسلامية بشهيد ملة رود. عدد المشاركين في الاختبار قسمي البنين والبنات 100 وطالبان 2. فمن القسم البنين من مركز اللغة العربية الصف الثاني الفائز الأول حماد عاصم، وثاني عبد الله فيصل، وثالث سعد. أما الثانوية المعهد العلمي الثانوي الصف الأول أولهم محمد إبراهيم، والثاني شهام عبد الصمد، والثالث آصف إدريس. ومن الصف الثاني الأول علي عاصم، والثاني سعد عاصم. أما الصف الثالث من الثانوية الأول سليم أحمد، والثاني عمار عبد الرب، والثالث سعود دانش. والصف الرابع الأول عبد الرحمن سليم، والثاني حسان عاطف، والثالث تنزيل الرحمن. أما من الكلية السنة الأولى فالأول عبد الرب، والثاني عفان رشيد. ومن قسم البنات من مركز اللغة العربية فأولهن فرحة عمران، والثانية شازية أرشد، والثالثة سميرة عبد القدوس. ومن الصف الثاني من مركز اللغة العربية الفائزة الأولى هي عائشة نثار، والثانية صالحة، والثالثة زينب إسرار وعبرة أسد. ومن المعهد العلمي الثانوي الصف الأول الفائزة الأولى شبنم كوكب، والثانية فصيحة حنيف، والثالثة شا زينب. الصف الثاني الفائزة الأولى حانية ريحان، والثانية حفصة ريحان، والثالثة عائشة عمران وربيع عتيق. سامعین اکرام، جامع ابی بکر الاسلامیہ کی شعبہ تحفیظ سے 11 خوش نصیب جنہوں نے کلام الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہم ارزقنا و ایاہم تلاوت کتابک آناء اللیل و اطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. وأخيرا أقول اللهم احفظ هذه الوجوه النيرة الطيبة واجعلهم صدقة جارية لنا ولكل من ساهم، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. جيل له العلا شعار حزى المعالي باقتدار، تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. جيل له العلا شعار حزى المعالي باقتدار، تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي، لأنني راقي، لأنني راقي، لأنني راقي. راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. لأننا مغامرون كما تمنينا نكون، خضنا الغمار لا نهاب
يوما فحركنا السكون لأننا مغامرون كما تمنينا نكون. خضنا الغمار لا نهاب يوما فحركنا السكون. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا ودائما طاقتنا تبني حياة في الحياة. الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا ودائما طاقتنا تبني حياة في الحياة. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. جيل له العلا شعار حاز المعالي باقتدار تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. جيل له العلا شعار حاز المعالي باقتدار تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. لأننا مغامرون كما تمنينا نكون. خضنا الغمار لا نهاب يوما فحركنا السكون لأننا مغامرون كما تمنينا نكون. خضنا الغمار لا نهاب يوما فحركنا السكون. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا ودائما طاقتنا
الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا، ودائما طاقتنا تبني حياة في الحياة. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي، لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذور الآفاق، ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي، دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. راقي سمت أخلاقي في ذور الآفاق، ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي، دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. جيل له العلا شعار، حز المعالي باقتدار، تبني يداه خير دار، تسمو خطاه حيث سار. جيل له العلا شعار، حز المعالي باقتدار، تبني يداه خير دار، تسمو خطاه حيث سار. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي، لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذور الآفاق، ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي، دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. لأننا مغامرون كما تمنينا نكون، خضنا الغمار لا نهاب، يوما فحركنا السكون. لأننا مغامرون كما تمنينا نكون، خضنا الغمار لا نهاب، يوما فحركنا السكون. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي، لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذور الآفاق، ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي، دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا، ودائما طاقتنا تبني حياة في الحياة. الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا، ودائما طاقتنا تبني حياة في الحياة. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي، لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذور الآفاق، ذوقا وروح عطرا تفوح. راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي، دوما يلوح فيها الطموح، دوما يلوح فيها الطموح. راقي
سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. جيل له العلا شعار حز المعالي باقتدار تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. جيل له العلا شعار حز المعالي باقتدار تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. لأننا مغامرون كما تمنينا نكون خضنا الغمار لا نهاب يوما فحركنا السكون. لأننا مغامرون كما تمنينا نكون خضنا الغمار لا نهاب يوما فحركنا السكون. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا ودائما طاقتنا تبني حياة في الحياة. الفجر صافحنا ضياء والمجد طاولنا علا ودائما طاقتنا تبني حياة في الحياة. الحلم يا رفاقي يزيد باشتياقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي لأنني راقي راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. راقي سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي غدت أحلامي في ضياء أيامي دوما يلوح فيها الطموح دوما يلوح فيها الطموح. جيل له العلا شعار حز المعالي باقتدار تبني يداه خير دار تسمو خطاه حيث سار. في نهاية المطاف لتكريم الطلاب فننتقل إلى كلمات الأخيرة ونرجو من فضيلة شيخنا بقية السلف مولانا عائش محمد حفظه الله تعالى فليلقي كلمته
जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। दुआया कलिमात के लिए मौलाना आयशा साहब से दरख्वास्त है कि वो दुआया कलिमात इरशाद फरमाएं। या ज़ल जलाल वल इकराम वल इज़्ज़त वल अल्लाहुम्मा इन्नका तरा मकानी व तस्माउ कलामी व तालमु सिर्री व अलानियती व ला यख्फा अलैक शैउन व अना रजुल मुशरिकु अल मुकिरुल मुतरिफु बिज़ंबी अना अल मुस्तगीसुल मुस्तजीर असअलुका मसरतल मिस्कीन व अब्ताहिलु इलैक इब्तिहारन मुज़निब ज़लील व अदूका दुआल खाइफ ज़लील व दुआ मन खज़त लक रकबतहु व फाज़त लक अबरतहु व ज़ल्ल लक जिस्महु व रागिम लक अनफुहु अल्लाह तेरनी बिदुआइक शकिया व कुल्ली रऊफ़ुर रहीमा या खैरुल मसूलीन व या खैरुल मुतीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरादू बिही कैदन फजअलनाहुम अल-अख़्सरीन इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन मशराब। या अल्लाह मैं अपने ख़ास फज़लो करम दे नाल पूरी दुनिया च दीन दा गलबा सानू अखां नाल वेखण दी साथ नसीब फरमा। सारे भाइयां नू तकवा ओढ़ना बिछौना बना दे। लफ़ताहना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्ज़। लखां करोड़ों रुपया हलाल दी तय्यब रोज़ी नायत फरमा जड़ी तेरी राह खर्च करिए। साडे बीमारां नू शिफा नायत फरमा। पूरी उम्मत नू मदीना मुनव्वरा दे मरकज़ से उवें जमा कर दे जिवें अज तो 1442 साल पहला असीं इकट्ठे सां। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाअल्लाह ताला मैं सब अहबाब का इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ज़ाकुमुल्लाहु अन्ना व अनिल मुस्लिमीन खैरल जज़ा। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल।